Good morning, everyone. Today we are with the topic accounting terms, and it's very important to understand these terms as you all are new in class 11th. So, first of all, let us see which are the various terms which will be useful in while studying the complete accounting throughout your career. Okay, so let us see the terms now. First term you can see on the screen is debtors. Actually, who are debtors? See, when we talk about sale can be done on both the basis. It can be done on cash basis as well as credit basis. If cash basis is there, there is no problem because cash will be instantly received. Okay, but suppose if the credit sale is done, it means they will to whom the credit sale has been done. Obviously, they will pay the money at some future particular date. तो ऐसे जितने भी लोग बिजनेस में होते हैं जिनको उधार या तो गुड्स सेल किया है या कोई सर्विसेज रेंडर की हैं और जिनसे पैसा कुछ टाइम बाद में मिलेगा, ऐसे सारे लोगों को हम डेटर्स के नाम से जानते हैं. ओके, तो हम डेटर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन और फर्म्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम. Okay, they are debtors. Then you can see the term creditor. Next term you can see is creditors. Creditors कौन होते हैं? Creditors are just reverse of the debtors. क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको फर्म फ्यूचर डेट पे पैसा पे करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली द फर्म, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इज परचेसिंग ऑन क्रेडिट्स फ्रॉम समवेयर. So who are the creditors? Creditors are the person or firm or company to whom the enterprise owes amount. It means the enterprise has to pay. Because why? Why has to pay? Because credit purchases of goods or services have been done. Okay. Then we can see the terms assets. What are assets? See, assets means the property. Business में जितनी भी property होती है which can be converted into cash, उसे हम assets के नाम से जानते हैं. Okay, so assets में क्या है? Property. Suppose you just imagine any business. Any business is having a lot of land is there, building is there, furniture is there, then machineries are there. There are various things are there which can be termed as asset because they can be converted into cash whenever required. Okay, then there are various types of assets as you can see on the screen: fixed asset, current assets, tangible assets, intangible assets, and wasting assets. So what are these? Let us see one by one. What are fixed assets? Assets which remain in the business for a long period of time, say more than 5 years, are termed as fixed assets. Okay, fixed assets, for example land, for example furniture, जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं. देन current assets, assets which remain in the business say for less period of time, say less than 1 year, are known as current assets. Okay, for example cash. Cash is a current asset. बिल रिसीवेबल, जितने भी उधार के जो बिल्स वगैरह हैं जनरली 1 साल के अंदर अंदर उनका पैसा मिल जाता है फर्म को, तो उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स. यानी कि ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर जिनका बेनिफिट यूटिलाइज हो जाता है विद इन 1 सेशन ऑफ ईयर, इज नोन एज करंट एसेट्स. देन टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच्ड आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, आर टर्म्ड एज टेंजिबल एसेट्स. Whereas intangible is a reverse of tangible. Assets which cannot be seen, which cannot be touched, but they are having a value which can be felt, are known as intangible assets. For example, goodwill hai, copyrights, patents, trademarks. These all are intangible assets. Okay, and then last you can see it is wasting assets.
Wasting assets, assets which are related to, actually these are the assets which are just assets for name. Okay, it means these are the assets which will be जिनकी वैल्यू कम होते जाती है along with the time, जिसे हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। दीज जैसे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो कम होते चले जाएंगे। दीज आर नोन एज वेस्टिंग एसेट्स। ओके, then you can see the term liabilities. Liabilities is a term which is exactly reverse of the assets. Liabilities यानी जिम्मेदारी, बोझ, जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटीज यानी क्या है एक्चुअली, सी हर बिजनेस की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बिजनेस करते वक्त इट्स अ नॉर्मल थिंग कि पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इतना पैसा सबके पास नहीं होता है कि कभी उधार लेना ही ना पड़े। सो मेनी टाइम लोन्स लिए जाते हैं बिजनेस के लिए, काम करने के लिए। तो लोन क्या है, लोन कोई फ्री में तो मिलेगा नहीं, लोन किसी फ्यूचर डेट पे वापस देना ही पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस, दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैज टू बी फुलफिल एट सम पर्टिकुलर date. Okay, these are liabilities. You can see the formula, liabilities is equals to assets minus capital. हम टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ पे हम इस इक्वेशन को बार बार हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हमेशा एसेट्स की टोटल और लाइबिलिटीज की टोटल हमेशा सेम रहती है। इसे आप इंटरचेंज करोगे, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। सिमिलरली, जैसे हमने देखे एसेट्स कई सारे टाइप्स के होते हैं, सिमिलरली लाइबिलिटीज भी जनरली टू टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटीज। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है, liabilities which will be paid say for a long period of time, say more than 5 years, वो लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टाइम तक पे की जाएगी। मे मीन इंस्टॉलमेंट हो सकता है, कोई बड़ा लोन लिया हो और वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है कई सालों तक, ऐसी लाइबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। देन करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। व्हाट आर द करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज विच विल बी पेड विद इन अ 1 year. Liabilities which remain in the business for a less period of time, say 1 year, are known as current liabilities. Okay, this was about liabilities. आप इतना ध्यान रखिए कि assets and liabilities टोटली दोनों आपस में वाइस वर्सा है। ओके, एसेट्स बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और लाइबिलिटीज बिजनेस की जिम्मेदारी होती है जो किसी फ्यूचर डेट पे करनी पड़ती है। Then next term you can see is goods. गुड्स यानी क्या है, सपोज कोई अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए गुड्स क्या है, उनके लिए वो जिस आइटम में बिजनेसमैन डील करता है, द आइटम इन विच द बिजनेसमैन डील इज नोन एज गुड्स। ओके, इट्स वेरी सिंपल। देन यू कैन सी द टर्म स्टॉक, जिसे हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक क्या है, स्टॉक एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है जो बिजनेस के पास होती है ताकि उसको आगे फ्यूचर में वापस सेल किया जा सके। ओके, स्टॉक में भी टाइप्स होता है। ओपनिंग स्टॉक, जो सेशन के शुरुआत में जो स्टॉक होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ओके, एंड थ्रू आउट द सेशन वर्किंग किया जाता है और परचेज किए जाते हैं, सेल किया जाता है, एडिशंस होते हैं। ठीक है, तो जो स्टॉक बिजनेस में एंड में बच जाता है, स्टॉक विच रिमेन इन द बिजनेस एट द एंड पीरियड ऑफ द सेशन, विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर द इन द एंड पीरियड, जो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। सी करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा। ओके, साल भर काम होगा, वापस क्लोजिंग होगा, वापस वो ओपनिंग बन जाएगा। इस तरीके से जो साइकिल होती है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की, वो कंटिन्यू होती रहती है। देन यू कैन सी द टर्म प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स यानी क्या है, आपने 10th तक मैथ्स में भी देखा था कि प्रॉफिट कब होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेम कंसेप्ट भी यहाँ पर हम देखेंगे कि जब बिजनेस में इनकम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एक्सपेंसेस, तब हम बोलते हैं कि इट इज़ अ कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट्स क्या है, प्रॉफिट सरप्लस है, किसका, किस पर सरप्लस है, प्रॉफिट इज अ सरप्लस ऑफ रेवेन्यूज ओवर
एक्सपेंसेस, प्रॉफिट में भी टाइप्स हम देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली हम बोलते हैं ना जिसे हिंदी में कि एक मोटे तौर पे प्रॉफिट कितना है बिजनेस के परचेज और सेल्स का अगर हम डिफरेंस निकालें तो व्हाट इज अ प्रॉफिट, दैट इज नोन एज gross profit. Okay, you can see the definition. Gross profit is the difference between sales revenue or the proceeds of goods sold and services rendered over its direct cost. What is a net profit? Net profit यानी जब जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं जब वो सारे निकाल दिए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से तो बाद में जो प्योर प्रॉफिट बचता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट. ओके, so net profit is the profit made after allowing for all the expenses. In case expenses are more than the revenue, it will incur in a net loss. See, it's not necessary कि business में profit ही होगा, या तो gross profit होगा या gross loss होगा, या तो net profit होगा या net loss होगा. Okay, then next term we will see is the loss. लॉस क्या है? लॉस जब होता है जब प्रॉफिट का एग्जैक्टली उल्टा कंडीशन हो, व्हेन एनी बिजनेस इन विच द expenses are more than the revenues, it is known as a loss. And obviously loss is not a good condition for the business. उससे क्या होगा, जो ओनर का जो कैपिटल है, जो ओनर का जो इक्विटी है वो कम होगा, एंड दैट इज नॉट साउंड फॉर द बिजनेस. ओके, it also refers to money or money's worth lost against which the enterprise receives no benefit. कई बार ऐसे काम हो जाते हैं कि जिसके लिए लॉस भी हो जाएगा लेकिन उसका कोई रिपेमेंट भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, कोई चोरी हो गया है मान लो, लेकिन और इंश्योरेंस भी नहीं करवाया, देन व्हाट, देन हम किसके पास जा सकते हैं? वी कैन नॉट अप्रोच एनीबडी. इन दैट कंडीशन दैट लॉस विल नॉट बी रिकवर्ड इन एनी वे, तो दैट विल बी नोन एज लॉस. ओके, then the next term you can see is expense. Expenses क्या है? See, expenses is the cost incurred in production and selling the goods and services. Expense में क्या क्या include हो जाएगा? वो अमाउंट है जो स्पेंड किया जाता है in order to produce and sell the goods and services. Then various examples we can see of our salaries, rent, wages, commission. Okay, these are all expenses. Now the term expenditure. What is expenditure? See, any disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. एक्सपेंडिचर का भी यही है. एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में डिफरेंस है. डोंट थिंक दैट बोथ द टर्म्स आर सेम. एक्सपेंसेस का जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर में जनरली इनका अमाउंट बड़ा होता है. ओके, ये वो खर्चे होते हैं जो एसेट्स पे जनरली किए जाते हैं एंड विच विल इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट. एक्सपेंडिचर को भी कैटेगराइज किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो बड़े बड़े खर्चे हैं जो जनरली एसेट्स पे किए जाते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं. एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट is termed as capital expenditure. Okay, for example, installation of machine, for example, repairs of the complete building. Okay, repairs of the all machineries of a plant, ये सब किसके example है? Capital expenditure के. Then revenue expenditure. Revenue expenditure, the full benefit of which is received during one accounting period is known as revenue expenditure. सी, बिजनेस में जो भी है, चाहे वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, deferred revenue, whatever type of expenses or expenditure are there, everything is done to earn something from them. Every expenses is done for some benefit, for some profit. तो वो खर्चे जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, जिसे हम कहाँ लेते हैं? जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तब उसके
डेबिट साइड में हम इसको लेते हैं. ओके. देन नेक्स्ट टर्म यू कैन सी इज रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स द इनकम. ओके. रेवेन्यू किसको बोलते हैं? रेवेन्यू हम लोग इनकम को बोलते हैं. सपोज अगर सेल्स से रेवेन्यू हो रहा है तो हम बोलेंगे सेल्स रेवेन्यू है. अगर एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू आ रही है, मतलब अगर इनकम अगर आ रही है तो हम बोलेंगे एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है. तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू यानी इनकम है. जब बिजनेस में इनफ्लोज होते हैं कैश के किसी भी वे में, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं. ओके. देन formula you can see, income is equals to revenue minus expense. एग्जाम्पल्स रेवेन्यूज के क्या क्या है? इनकम अलग अलग वेज में होती है. फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है. दीज आर ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू. ओके. देन द टर्म इनकम, बिजनेस से जो प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं, ओके, इसे हम इनकम के नाम से जानते हैं. Income is a profit earned during the accounting period. In other words, the difference between the revenue and expenses is called income. Then the next term you can see is transaction. Transaction क्या होता है? Transaction is the happening of the event. The exchange is done in the business is known as transaction. बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उसे हम ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं. Then you can see the characteristics of a transaction. It is concerned with money or money's worth of goods or services. It arises out of transfer or exchange of goods or services. It brings a change in the financial position of an entity. It has a dual aspect. हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम सेकंड चैप्टर का वीडियो देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डुअल एस्पेक्ट क्या है. सी बिजनेस में जितना डेबिट किया जाता है उतना ही क्रेडिट होता है. इसे हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम. ट्रांजैक्शंस में भी कैश और में भी क्रेडिट, बट ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज. चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में, उसे हम ट्रांजैक्शन ही बुलाएंगे. नेक्स्ट टर्म यू कैन सी इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी क्या है? देखो, बिजनेस में क्या होता है, हमेशा हमें एज पर द बिजनेस सोचना है. जब भी हम एंट्रीज पढ़ेंगे हम देखेंगे कि आपको बार बार बोला जाएगा कि बेटा एज ये सोचो कि आप एक बिजनेस हो. यू हैव टू ऑलवेज थिंक एज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. सपोज आपका ही बिजनेस है, आप ही उसमें पैसा लगा रहे हो, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम हमेशा ये मानते हैं कि बिजनेस एक अलग हस्ती है और हम एक अलग पार्टी है. यानी हमेशा हम एज अ बिजनेस सोच के अकाउंटिंग करते हैं. ओके. इसी कंसेप्ट को हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं. यानी कि both the persons, the business and the person and the owner, these both are separate entities. That is business entity concept. Next term you can see is drawings. ड्राइंग्स यानी क्या? जनरली ड्राइंग वर्ड देखते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स देख रहे हो तो यू विल फील दैट ड्राइंग इज व्हाट यू आर डन टिल क्लास 10th यू हैव सीन ड्राइंग सब्जेक्ट. नो, दिस इज नॉट दैट ड्राइंग एट ऑल. सी बिजनेस में क्या होता है, मेनी टाइम्स द बिजनेस गुड्स और द बिजनेस कैश इज यूज्ड फॉर द पर्सनल पर्पस. और जब बिजनेस का पैसा, बिजनेस का कैश जब पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है उसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं. ओके. देन next term you can see is capital. Capital यानी क्या है? See, whenever the business has to be started, what is required? Generally question ये आता है कि business start करना है, क्या चाहिए? Obviously money is required, but it's necessary कि only money will be used there to start the business. Many times instead of money, yeah, I can say along with the money, many other things are also invested in the business. For example, furniture can be invested, various other assets can be invested. It means finally capital hai kya? Capital means the money, oblique goods, which is invested in the business to start that is known as capital. कैपिटल अगर बाद में, जरूरी थोड़ी कि कैपिटल स्टार्टिंग में ही चाहिए. कैपिटल कैन बी रिक्वायर्ड अगेन एट एनी टाइम इन द बिजनेस. इसे हम फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड के नाम से जान लेंगे. ओके. ये एडिशनल कैपिटल के नाम से आप इसको ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट टर्म यू कैन सी इज कॉस्ट. कॉस्ट यानी क्या है?
Cost means it is actually the expenditure which is incurred on, expenditure which is incurred or attributable to a specific article, product or activity. Then gain. कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि प्रॉफिट और गेन में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन. प्रॉफिट्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू द बिजनेस, बट गेन क्या है? गेन भी इनकम है, लेकिन इनकम जो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज लॉटरी लग गई, बहुत सालों से कोई केस चल रहा था, पेंडिंग चला रहा था और केस बिजनेस के फेवर में आ गया और बहुत पैसा मिला है उसके बदले में. तो ये क्या है? इसमें कैश इनफ्लो हुआ है, बिजनेस में पैसा आया है, लेकिन ये जो पैसा आया है ये बिजनेस से रिलेटेड है क्या? नहीं. तो इसे हम बोलेंगे गेन. ओके, और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं. देन नेक्स्ट टर्म यू कैन सी इज फ्रेट. फ्रेट यानी क्या है? फ्रेट्स यानी जब गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह, तो टैक्सेस पे किए जाते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेट चार्जेस. नेक्स्ट टर्म यू कैन सी इज परचेजेस. कोई डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो व्हाट आर परचेजेस एंड ऑल. ओके, यू कैन रीड व्हाट इज गिवन ऑन द स्क्रीन. Then you can see purchase return. See, it's not always necessary कि the goods purchased will be as per the order, as per the specification. कई बार ऐसे गुड्स आ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, या मे बी जिसमें कोई डिफेक्ट हो, तो दैट हैज टू बी रिटर्न्ड, और इसे बोलते हैं हम परचेज रिटर्न. Next term you can see is import. Import already you studied in class 9th and 10th, when goods are brought into the country from a foreign country for the purpose of business. उसे हम बोलते हैं import. Obviously government will levy taxes in the form of various duties when the goods are imported. Then freight or carriage inward. Freight यानी क्या है? Carriage inwards. It means the cost incurred for transporting the goods to the place of business. It is added to the purchases cost. ये सारी जो चीज़ें हैं, ये गुड्स की जब कॉस्ट निकाली जाती है कि गुड्स कितने में सोल्ड करना है, तो ये सारी उसमें एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं. देन सेल. सेल क्या है? सेल यानी क्या होता है? सेल, द टर्म्स यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स डील्ड बाय द एंटरप्राइज. द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल. जब गुड्स कैश में बेचे जाते हैं तो वी विल से दैट इट इज अ कैश सेल्स, एंड व्हेन गुड्स आर गिवन इन क्रेडिट, इट मींस द मनी विल बी रिसीव्ड एट सम फ्यूचर डेट, देन इट इज टर्म्ड एज क्रेडिट सेल्स. Then sales return. Similarly, जैसे purchase return होता है, when the goods are sold, it happens many times that the party to whom the goods are sold will send some goods in return, because maybe there is some defect, maybe they are not as per the order or specification. So that will be termed as sales return. It is also known as return inwards. Next term you can see is export. When the goods are sent outside of the country is known as export. Okay, then carriage outwards or freight. It is again a cost incurred for transporting the goods sold. It is a part of the selling expense. Then you can see voucher. Voucher यानी क्या है? Voucher आपको नाम से लग रहा होगा voucher is something which is very typical, but voucher is nothing. It is just a bill. Then discount. Discount यानी some relaxation is given in the price, which is known as discount. Then trade discount. Trade discount, it is a discount allowed to a customer on the basis of quantity of goods purchased. कई बार क्या होता है, उधार में बहुत सारे बल्क में गुड्स परचेज किए जाते हैं, एंड तब जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. ओके, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स. ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. Cash discount, whenever cash payment is done instantly, spontaneously, immediately, and when at that time when some relaxation is given the price, is known as cash discount, and it is always recorded in the books. Next, account. It is a summarized record of, ये एक summarized record होता है सारे transactions का जो business में किए जाते हैं, जिसे हम account के नाम से जानते हैं. Books of accounts.
दे आर द रिकॉर्ड्स. बुक्स ऑफ अकाउंट यानी क्या है? रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं. सी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शंस विच हैव बीन हैपन इन द बिजनेस. इसीलिए क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बुक्स इन विच द रिकॉर्डिंग विल बी डन, वी विल स्टडी इन द फर्दर चैप्टर्स. देयर आर वेरियस बुक्स. We'll study the subsidiary books, the journal, ledgers and all, in which recording will be done, and these all are known as books of accounts. Then entry. A transaction and event when recorded in the books of account is known as entry. Debit. देखो ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, डेबिट क्या है? An account has two parts, debit and credit. The left side is the debit side, right side is the credit side. If an account is to be debited, the entry is posted to the debit side of the account. In such an event, it is said that the account is debited, or iska reverse credit. Credit is the right side of the account. If an account is to be credited, then we will say that the account has been credited. Then the term you can see is proprietor. Proprietor कौन है? Proprietor is the owner, is the person who makes the investment and bear all the risk and rewards of the business. Receivables. Receivables यानी क्या है? Receivable means the amount which is due from others is known as receivable. Payable, the amount which has to be paid. The in term includes the amount due to others is known as payables. Then term we can see is bills of exchange. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? हम देखेंगे क्लास 11th में, लास्ट चैप्टर जो है आपके पार्ट 1 में, तो कंप्लीट चैप्टर इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. We will see that it is an unconditional order in writing given by the creditor to the debtor, accepted by him to pay on demand or after a certain period a certain sum of money to or to the order of a specified person or to the bearer. Bill receivable. Bill receivable means acceptance given by the debtor. It means that the debtor is ready, that he is saying that yes, he agreed to the point that he will pay a certain amount at a certain period of time. Okay, it means and generally these all concepts are related to the credit sale. जब उधार में सेल होगा तब जाके ये concept आएगा bill receivable and all. Similarly, bills payable, it means acceptance, bills of exchange, the amount of which will be payable on the specified date. Then depreciation. See, generally most of the assets shows a decrease in the value with the passage of time, and diminution in the value of the asset is known as depreciation. Depreciation के कई सारे reasons हो सकते हैं. हो सकता है कि टाइम के साथ साथ एसेट आउटडेट हो गया, हो सकता है कि एक्सीडेंट के कारण हो गया, हो सकता है कि एब्सोल्यूट हो गया, अब ट्रेंड में ही नहीं है. ठीक है, नए नए चेंजेस आ गए हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. डायरेक्ट ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब उसमें आप देखोगे हम कई सारे डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं जिसे हम गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं. बैड डेट्स. कई बार ये होता है कि बिजनेस में कुछ पैसा डूब जाता है. जो डेटर्स होते हैं दे आर नॉट पेइंग द होल मनी. Some debtors are making it bad and that is known as bad debts. Insolvent. कई बार होता है कि कोई पर्सन डूब जाता है, they are not in a condition to pay the debts, तब हम वर्ड यूज करते हैं insolvent. उल्टा जब कंडीशन अच्छा होता है बिजनेस का, पर्सन का, एंटरप्राइज का, तब हम बोलते हैं कि कंडीशन इज सॉल्वेंट. देन book value. It is the amount at which an item appears in the books of accounts. See, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग किस वैल्यू पे हो रही है. ठीक है, हम देखेंगे कि हमेशा हम वही वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में जब एसेट खरीदा गया था. क्यों? क्योंकि उसका एविडेंस होता है, उसके बिल्स होते हैं. उस वैल्यूज पे जब वो एसेट रिकॉर्ड किए जाते हैं उन वैल्यूज को हम बोलते हैं बुक वैल्यू. बुक वैल्यू के साथ साथ मैं आपको मार्केट वैल्यू भी बता दूं. मार्केट वैल्यू वो होता है जब एसेट को सेल किया जाता है. व्हाट इज द कंडीशन
what is the rate of the asset in the market at that particular point when the asset is to be sold, उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बुक वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर रिकॉर्डिंग की गई है बुक्स में, ओके, और मार्केट वैल्यू है जो उस एसेट की करंट वैल्यू होती है। देन नेक्स्ट टर्म यू कैन सी इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी क्या है? इट मीन्स फंड इन्वेस्ट करना, जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट मीन्स डिप्लॉयमेंट with the intention and expectation that it will give a good return at some future date. In common parlance, it refers to shares and debentures of companies or mutual funds or bonds issued by the financial institution or by the government. Investments are not expected to be sold within a year. लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है इन्वेस्टमेंट, ओके, ताकि उसे रिटर्न्स मिलते रहे। नेक्स्ट टर्म यू कैन सी इज एंटिटी। एंटिटी यानी क्या है? जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिनका अपना एक लीगल इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, ऑल आर नोन एज एंटिटी। अ सिंगल एंटिटी एंड अ ग्रुप इज नोन एज एंटिटीज। नेक्स्ट टर्म यू कैन सी इज ट्रायल बैलेंस। ये जो वर्ड्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट है, ये बेटा आपको तभी समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। कि जब हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे देन इट दिस ऑल थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल, ओके। अभी आप इसका थ्योरी देखो। ट्रायल बैलेंस यानी क्या है? ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तब हम देखेंगे कि जनरली टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिमेन्स सेम, ओके, and it is serves as a basis actually for the financial statements. On the basis of trial balance, trading account, P&L account and balance sheet will be made. Then you can see trading account. On the basis of the trial balance, we are going to prepare the income statement, okay, which will show profit generated by trading activities of an enterprise called as gross profit. It includes only direct income and direct expenses of the enterprise. जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, और जहां हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे उसे हम P&L अकाउंट बोलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जनरली हमेशा हम ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड अप टू फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगा, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट लगे, ओके, उसे हम बोलते हैं, उन सबको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। एंड व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट? बिकॉज वी वांट टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। बोला था ना मैंने भी कि मोटे तौर पे प्रॉफिट कितना है, सिर्फ गुड्स को परचेज और सेल में क्या डिफरेंस है, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। देन पीएनएल अकाउंट वो अकाउंट होगा जहाँ पे हम सारे छोटे मोटे सब नॉमिनल एक्सपेंसेस हम लोग इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा दैट विल बी नोन एज नेट प्रॉफिट, एंड ये सब पीएनएल में आएगा। बैलेंस शीट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यानी कि सी एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द सेशन, ओके। उसके लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक एक्चुअली जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है साल भर का, जिसमें आप after seeing your report card, it can be clearly understood that what was the performance of the child during the whole session. Similarly, by seeing the balance sheet, it can be clearly understood that what is the financial position of the business, where the business is standing, what are the plans of business, how many assets and liabilities the business is having, the business is owning. So balance sheet is just like your report card, okay. It will show a financial, it will give a true financial picture, I can say, of the business, okay. With this I will end this video, okay. I hope you understood all the basic terms, okay. Revise it once again properly. Have a nice day.